You want to pray? No. Yeah, I'll pray. Yeah. Father, we thank you, Father God, for this wonderful day, this opportunity, God, to learn something new about you, God. I can't hear you. The mic Yeah. pass. Okay. Mike. Permission, Father, we thank you for this beautiful day, God. Thank you, Father God, for this one more day that you have added in our life, Father God. Thank you, Lord, that we are going to learn something new, Father God, of your love, Father God, that we can taste of your grace, Father God, every morning, God. Your mercies are new, Father God. We just thank you and praise you, Lord. We pray that you would anoint your servant as he ministers, Father God, your word, Father God. And Father, we pray that we would live our life with holy reverent, Father God, worshiping you and praising you and learning great great things from you, Lord. We ask you and bless this time and this portion, Father God. In Jesus' name we make this prayer. Amen. अरे, Uh, ये क्या हो uh, गया? Okay, done. So now we are moving into the Gospels. So we are starting with Luke 1. The Luke 1 uh, is a great portion. We can see uh, starting from Elizabeth and Zechariah, their lives, and then it goes into the birth of Jesus. Okay. So in Luke 1, you can read the chapters when you have time. We just have 45 minutes, so we're going to just look the main portions. So it says, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias. I'm reading verses 5 to 7. Okay. The division of Okay. Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. But they had no child because Elizabeth was barren. They were both advanced in years. So what all we get to know, there is a priest in the name of Zechariah. This is in the days of Herod. Herod was the ruler which was appointed by the Roman rule, which we saw in the last class. So Zechariah is one of the priests. Basically, priests are from the Levite tribe. So Zacharias is one of the priests. We need to know that there are 24,000 priests. Priests were selected. So there are 24 different groups. Each group has 1,000 priests, and there is only one high priest of the whole 24,000 priests. And it says Elizabeth was from the generation of Aaron, and they both were walking blamelessly before the Lord. They are righteous. They are following all the commandments. Just the thing, one issue they had was they didn't have any child. I'm sure they have been praying since long for a child. They have been praying since long for a child. And if we see the name of Zacharias, जकरिया का नाम अगर हम देखेंगे, इसका नाम है परमेश्वर याद करता है. और एलिजाबेथ का नाम हम देखेंगे, का नाम ये है परमेश्वर का वादा. और उनका बच्चे नहीं था और काफी बूढ़े भी हो गए, बूढ़े हो गया और काफी साल हो गया. वो प्रार्थना कर रहे थे, काफी प्रार्थना कर रहे थे, मगर परमेश्वर अपना समय ले रहे थे इसमें. परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमारा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, मगर उनका समय में देते हैं. कि हम आगे प्रार्थना के बारे में भी सुनेंगे. प्रार्थना कितना ये पंक्ति के द्वारा प्रार्थना कितना महत्व है उसके बारे में भी देखेंगे. जैसे हम अलग अलग कार्य के लिए प्रार्थना कर सकते, काफी लंबा से हमारा प्रार्थना हो सकता है. जैसे मेरा माँ बाप का, नहीं तो मेरा भाई बहन का जो उद्धार में आना है उसके लिए, नहीं तो अच्छा काम के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा शादी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो हम मेरा कार्य
जो मैं काम कर रहा हूँ बिजनेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है काफी दिन से उसका उत्तर बराबर नहीं हुआ है, मगर ऐसा नहीं है परमेश्वर सुना नहीं है, और ऐसा नहीं है परमेश्वर भूल गए। वो अपना समय में वो बताएंगे। आगे देखेंगे कि हम एलिजाबेथ और जकरिया का कैसे परमेश्वर उत्तर दिया। और हम तीन मुख्य चीज हम पास्टर काल का नोट से हम सीख रहे हैं ना। तीन मुख्य चीज पास्टर काल बता रहा है प्रार्थना के बारे में। पहला ये है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने रहता है, परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना रहता है। लूका 1:8 से 10 हम पढ़ सकते हैं। इसमें तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, नाउ इट हैपेंड दैट व्हाइल Zacharias was performing his priestly service before God in the appointed order of his division, according to the custom of the priestly office, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense, and the whole multitude of people were in prayer outside the hour of incense offering. जैसे हमने देखा हमें 24,000 याजकों हैं और 24 अलग अलग डिवीजन है। तो उससे कौन परमेश्वर का अति पवित्र स्थान के अंदर जा सकता है करके वो चुनते हैं, और साल में एक बार सिर्फ महायाजक ही जा सकता है। और उस समय ये समय में जकरिया का नाम आता है। वो लोग वो जैसे लॉट बोलते हैं, अलग अलग नाम डाल के वो उससे पेपर में लिख के डालते हैं और उससे चुनते हैं। ऐसा ये जकरिया का नाम आया इस बार, जो अधि पवित्र स्थान में जा सकते, अधि पवित्र स्थान में जा सकते। और जकरिया क्या कर रहा है? अंदर जा रहा है, वो पवित्र स्थान में जा रहा है। पवित्र स्थान में प्रार्थना करने के लिए एक ऑल्टर है, उधर जा रहा है, उधर प्रार्थना कर रहा है। और बाहर ये तंबू, ये टैबरनाकल है, नहीं तो मंदिर है, टेम्पल के बाहर सारे इस्राएल का यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उधर खड़े हैं। और क्या इसमें हम ये देख सकते हैं, भजन संहिता 141 है। भजन संहिता 141 वचन 1 और 2। इसमें दाऊद ऐसा कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं आपसे पुकारता हूँ और आपका कानों मेरा वचन के लिए आप दे रहे हो, और मेरा जो प्रार्थना है आपका वो बहुत अच्छा, जो सुगंध जैसे आपके सामने आ रहा है, ऐसा ये वचन बोल रहा है। Oh Lord, I call unto thee, give ear to my voice, and let my prayer be counted as a sweet incense before thee. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का सामने जब हमारा प्रार्थना विश्वास से होते हैं, दिल से होते हैं, सच्चाई से होते हैं, वो परमेश्वर के सामने एक सुगंध जैसे परमेश्वर का बहुत अच्छा लगता है। और उसको बाइबल ये भी बोलते हैं कि वो जो सोने का जाड़ी में हमारा प्रार्थना लेके रखा जाता है, और हमेशा के लिए वो यादगार रहता है उसका। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विश्वास का प्रार्थना, सच्चाई का प्रार्थना, परमेश्वर के सामने जाते हैं, और उन्होंने सोने का जाड़ी में हमारा प्रार्थना सब इकट्ठा करके रखते हैं, और हमेशा के लिए रखता है, और एक सुगंध जैसे होता है। हम सोच सकते हैं क्यों हमारा प्रार्थना ऐसा सोने का जाड़ी में परमेश्वर रखना है। हम सोच सकते हैं हर घर पे जैसे बहुमूल्य चीज है, सोना है, चांदी है, क्या करते हैं, एक बीरो नहीं तो अलमीरा के अंदर और एक सुरक्षित जगह पे आप रखते हो, एक अच्छा जगह पे। कुछ लोग के पास बॉक्स होता है, उसमें भर के सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसा ही परमेश्वर का हमारा जो प्रार्थना है, परमेश्वर का बहुत मूल्य है।
तो वो ऐसा रखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने आते हैं और वो बहुत मूल्य है उनके लिए। और दूसरा ये है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और करता है। तो हम एलिजाबेथ और जकरिया का अगर हम जीवन के द्वारा देखेंगे, उन्होंने काफी साल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमें बच्चे नहीं हैं और हमें बच्चे एक नया बच्चे का जरूरत है। वो काफी साल से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय वो भूल भी गए होंगे, काफी समय हो गया। हो सकता है उन्होंने सोचे होंगे शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं है इसके ऊपर, और परमेश्वर उन्होंने इंतजार कर रहा था सही समय के लिए और बहुत अच्छा जवाब देने के लिए। और हम लूका 1:11 और से 13 तक वचन में अगर देखेंगे, जब जकरियास उधर मंदिर के अंदर पवित्र स्थान में प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत आया। दाहिनी ओर से एक स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत बोला, जकरियास थोड़ा सा डर गया, ये क्या हो गया, ये कौन है। और स्वर्गदूत का भी इतना महिमा होता है। कभी कभी जब मनुष्य लोग देखते हैं स्वर्गदूत को, वो सोचते हैं शायद ये परमेश्वर है, क्योंकि उतना महिमा स्वर्गदूत का भी होता है। और इसलिए जकरिया से डर गया था वो बहुत महिमा देख के। और वो स्वर्गदूत बोला, तुम डरो मत जकरिया, और तुम जो प्रार्थना किया है वो सुना हुआ है। और पहले ही जब भी आप प्रार्थना किए, उसी समय उसका परमेश्वर हाँ बोल दिया, और वो सुन गया और हाँ बोल दिया। और मगर उत्तर कब आ रहा है? उन्होंने काफी साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, मगर परमेश्वर सही समय के लिए इंतजार कर रहा है। और अभी ये समय में जकरिया का नाम चुन रहे हैं मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए अंदर। और उस समय स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर बता रहा है, जो इतने साल तुम प्रार्थना कर रहे थे ना, उसके लिए मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ। और बोल रहे हैं एलिजाबेथ का एक बेटा होगा और उसके नाम तुम यूहन्ना रखना, जॉन रखना। और ये कितना बहुत अद्भुत बात है कि काफी साल से प्रार्थना करने के बाद कि आपको, आप जब सोचते नहीं है शायद अभी उत्तर नहीं आएगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, काफी साल हो गया, परमेश्वर सुना है नहीं, पता नहीं, और सोच रहे होंगे ये शायद नहीं होगा। और परमेश्वर उस समय आके आपका प्रार्थना का उत्तर दिखा रहा है, बता रहा है। तो जब भी हमारा प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और विश्वास और सच्चाई भर के है, वो जरूर परमेश्वर सुनते और उत्तर देते। और बात ये है, कभी कभी हम सोचते हैं आज ही होना है, कल ही होना है, और परमेश्वर का समय होता है। परमेश्वर का बहुत अच्छा समय मालूम है। ठीक है, देखिए अगर हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना का ऐसा उत्तर देता है जो उनको महिमा लेके आता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है, मगर ऐसा समय में और ऐसा रीति में वो उत्तर देता है, हम परमेश्वर का महिमा लेके आते हैं। अब सोचिए, तो एलिजाबेथ और जकरिया का परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उनका नाम है यूहन्ना। उसका मतलब है एक अनुग्रह का सम्मान। जकरिया का नाम का मतलब ये था कि परमेश्वर याद करता है। एलिजाबेथ का नाम का मतलब ये था परमेश्वर का वादा। और यूहन्ना का नाम का मतलब ये है अनुग्रह का सम्मान। तो ये सब आप मिलके आप देखोगे, ऐसा है कि ऐसा बता रहा है, परमेश्वर याद रखता है अपने वादों को और अनुग्रह का सम्मान देता है। उनका नाम से आप देख सकते हैं, मतलब जकरिया, एलिजाबेथ और यूहन्ना। हम्म, और मतलब हम इसमें ये हम समझना है। देखिए,
ये काफी साल से एलिजाबेथ और जकरिया प्रार्थना किए होंगे। अगर उसी समय परमेश्वर उनको बेटा दिया होगा, बेटी दिया होगा, वो यूहन्ना बपतिस्मा नहीं बन सकते। तो परमेश्वर देखा है एलिजाबेथ और जकरिया बहुत धार्मिक है और मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा संबंधित में है और वो प्रार्थना कर रहे हैं काफी साल से, और मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मगर ऐसा समय में, ऐसा रीति में मैं उत्तर देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अद्भुत होता है और मुझे महिमा लेके आ सकता है। हाँ। और अगर उस समय जब शुरू शुरू में उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उन्होंने प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर दिखाया होगा, वो यूहन्ना बपतिस्मा नहीं हुआ होगा। वो जो बहुत बड़ा नबी था और परमेश्वर का, यीशु मसीह जब आ रहे थे उनका रास्ता उन्होंने ठीक किया। तो वचन में लूका 1 में भी हम देख सकते हैं, जब स्वर्गदूत बोलता है कि इनका जन्म के द्वारा बहुत हर्ष और आनंद आता है, काफी लोग का आनंद मनाते हैं इनका जन्म के द्वारा, और ये बहुत बड़ा नबी होगा, परमेश्वर का कार्य करेगा। हमारा प्रार्थना में इंतजार होना चाहिए और हमारा प्रार्थना का हमारा प्रार्थना के साथ साथ जब समय लेता है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। शायद परमेश्वर का उत्तर और अद्भुत होगा, शायद परमेश्वर का उत्तर और बड़ा है, अलग है। हम जितना सोच रहे हैं उससे और ज्यादा परमेश्वर सोच रहा है, ये हम याद रखना। सो एलिजाबेथ और जकरिया के द्वारा उनका प्रार्थना का जीवन, उनका विश्वास के द्वारा हम ये सीख सकते हैं। पहला ये था, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने आता है और वो बहुत, परमेश्वर के सामने वो बहुत मूल्य है। दूसरा ये है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करता है। तीसरा ये है, हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, मगर उनका महिमा के हिसाब से, उनका समय में, उनका रीति में। ठीक है, एक अभी दूसरा भाग में जाते हैं, एक क्लास में यीशु मसीह जैसे इस दुनिया पे आया उसके बारे में इनकारनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका ट्रांसलेशन में एक बार देख लेता हूँ, इनकारनेशन का क्या बोलते हैं। Lenin, can you just repeat that second and third point? In the eyes of God, in the eyes, God has value for our prayers. After that, I didn't get the second and third point. Can you just repeat that, please? About the prayer, no? Yes. पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है, परमेश्वर के सामने हमारा प्रेयर, हमारा प्रार्थना जाता है और वो मूल्य है। सेकंड ये है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है और उसके ऊपर कार्य करता है, और प्रेयर्स आर ग्रांटेड बाय जीसस और ग्रांटेड टू डू बाय गॉड। तीसरा ये है, हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है अपना समय में और अपना रीति में, फॉर हिज ग्लोरी, उनके महिमा के लिए। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।